صورتحال کے حوالے سے اور جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اور ملک کیسے بہتر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، چونکہ آپ کو آواز اب تک نہیں پہنچ پا رہی تھی بریک سے پہلے، عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ احتساب کیا کریں گے، آپ تو نیب کو ہی ختم کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ احتساب، ظاہر ہے احتساب کے بغیر تو معاملہ آگے بڑھے گا نہیں. اصلاحات کی جو بات کر رہے تھے آج پرائم منسٹر نے، سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ زرداری صاحب کیا احتساب کریں گے، یہ تو قیامت کی نشانی ہے. معاملات آگے کیسے چلیں گے اور کس طرح جو ہے وہ ملک ریک کی طرف آئے گا؟ اس طرح کی اگر بیانات آئیں گے، چاہے اپوزیشن کی طرف سے آئیں، حکومت کی طرف سے آئیں، تو معاملات تو اور زیادہ خراب ہوں گے. یہ وقت ہے کہ چونکہ پاکستان ہے تو ہم سب آپ ہیں، آپ کی سیاست ہے، ہماری صحافت ہے، تو یہ معاملات وسیع تر مفاد میں کچھ مل بیٹھ کر اور آگے مفاہمت، چونکہ مفاہمت کے تو بادشاہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی ساتھ ملائیں، پی ایم ایل این تو آپ کے ساتھ آن بورڈ پہ ہے تاکہ معاملات آگے کی طرف جا سکیں، یہ جو ایک بے یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہو سکے. شاہدہ رحمانی صاحبہ جی، آپ نے خود یہ ایک بات کی، اب بالکل پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم اسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، ورکرز نے اپنی جانیں قربان کی، اور اس عمران خان نے اس ملک کو جس انارکی، انسرجنسی، انتشار، افراتفری، اخلاقیات کی تباہی، تنزلی اور معیشت کو، پاکستان کو تباہ کرنے کا جو اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس کے عزائم کو ہم ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل صدر زرداری صاحب نے جو نیب کو، ہاں آپ نے بات کی نیب کی، جی نیب کو جس طرح عمران خان نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا، 3.5 سال میں، چاہے صدر زرداری ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، چاہے دیگر جماعتوں کی اپوزیشن کی، ان کو اس نے کہا تھا کہ میں جیلوں میں بند کروں گا. انہوں نے کیا، اپنی حسرت نکالی، ان کا اے سی نکال دوں گا، نکال لیا. انہوں نے قیادت بند کی سہولتیں دی، سارے ظلم کیے، لیکن ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے کیونکہ وہ جھوٹ تھا، اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے، کبھی سچ نہیں بن سکتا. اب عمران خان صاحب کی چیخیں نکل رہی ہیں جب ان کی کرپشن جو ہے وہ کھل رہی ہے. ہم تو کہتے تھے، اور ہم نے تو ایک آئینی طریقے کو اڈاپٹ کیا، ہم نے کوئی انسرجنسی نہیں کی. ہم اب کراچی سے لاکھوں لوگوں کا قافلہ لے کے اسلام آباد پہنچے، اور آپ نے دیکھا کہ 8 مارچ کو بڑے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے چیئرمین صاحب نے اپنے ورکرز کو منتشر کیا. یہ ہوتا طریقہ احتجاج کا، یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھیں گے، ہم خون کی اولی کھیلیں گے، ہم خون ریزی کریں گے، جی آپ اوورسیز سے پیسے نہ بھیجیں، ہنڈی سے بھیجیں، سول نافرمانی کریں، آپ بل نہ بھریں، بلوں کو جلا دیں، آپ اداروں پہ حملہ کریں. ایسا نہیں ہوتا، ہم نے کبھی اس طرح کی پالیٹکس نہیں کی. ٹھیک. ہم نے ایک آئینی طریقہ اپنایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس کا عمران خان کو بہت انتظار تھا، شدت سے انتظار تھا. ان کی وہ دعا قبول کی اللہ نے، اور وہ ہم نے پیش کیا. بجائے اس کے کہ وہ اپنے 172 ممبرز پورا کرتے، انہوں نے پھر اسی طرح جھوٹ بولنا شروع کیا جو 1 کروڑ نوکری اور 50 شاہدہ لاکھ رحمانی کروڑ صاحب، کا وہ وعدہ. دوبارہ اسلام آباد کی کال دینے کے، ایک تو یہ پریشر تھوڑا سا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے کہ اسلام آباد میرے آنے سے پہلے انتخابات کا، عام انتخابات کا اعلان کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جو جہاں تک وہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے؟ چونکہ کل آصف علی زرداری صاحب نے تو بڑے واضح انداز میں کہا ہے جب تک اصلاحات نہیں ہوتی، ریفارمز نہیں ہوتے الیکشنز کے حوالے سے اور نیب کے حوالے سے، اس سے پہلے میاں صاحب کو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بالکل بھی الیکشنز کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں وہ پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اگلے 3 مہینے جو میں؟ پریشر بلڈ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ کیا انہوں نے، رمضان میں چاروں صوبائی دارالحکومت اور اسلام آباد میں جو مظاہرے کیا ہوتا، پوری قوم نکل آئے گی. آپ نے دیکھا کہیں پہ 20 سے، کہیں پہ 30 سے، کہیں پہ 40 سے. ٹھیک ہے، لوگ ان کے بیانیوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، ان کو مسترد کر چکے ہیں. اور اسی طریقے سے چاند رات اور عید بھی دیکھ لیا. خان صاحب پریشان ہے کہ میں عوام کو کہاں سے لاؤں. پھر وہ اپنی مرضی کا کیمرہ، اپنی مرضی کی لائٹ، مرضی کا میڈیا لے کر آتے ہیں، اور سارے میڈیا کو بند کر دیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے جلسی کو جلسہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے بیانیوں کو عوام تو ہے ریجیکٹ شاہدہ کیا جا رحمانی صاحبہ، چکا ہے، عوام تو نکلے ہیں ان اور کے خاص ساتھ. انتخابات اپنے وقت مقررہ پہ ہوں گے، اور جب بھی ہوں ٹھیک. گے بالکل الیکٹرل ریفارمز کے ساتھ ہوں گے. کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ جو یہ کہیں گے وہ ہوگا. جس طرح یہ وزیر چلیں اعظم ٹھیک بننے ہے. کے ڈاکٹر شاہدہ صاحب آپ بعد، لائن پہ رہیے گا. عظمیٰ ریاض جدون صاحب آپ کی پھر شکوہ کرتی ہیں کہ ہمیں کاؤنٹر نہیں، اب آپ ان کا جواب دے آپ تو دیں. سارا ٹائم ہی ان کو دیتے، مجھے تو دیتے ہی کم ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے، ہم پورا وقت دیتے ہیں آپ کو. اب آپ رسپونڈ کریں شاہدہ رحمانی صاحبہ کو، پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گا.
देखिए जी, शाहिदा रहमानी साहिबा से मैं कहूँगी, दो जो है पीडीएम की मेरे ऊपर क्वेश्चन पे क्वेश्चन की जा रही है। मैं एक पीटीआई की बैठी हुई हूँ जो आप दोनों को जवाब दे रही हूँ। तो ये कहते हैं ना, इंसाफ इसी में ही है कि आप मुझको थोड़ा टाइम दें और आप लोग थोड़ा कम टाइम लें, क्योंकि आप दोनों का एक ही मौकफ है। अच्छा, पहली बात ये है कि जी आपने जिस तरह से कहा कि मीडिया पे इनका कंट्रोल है, ये जरा प्लीज देखिएगा, आवाज डबलिंग हो रही है तो मुझे थोड़ा मसला हो रहा है। हम तक आवाज सही आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा अच्छा, यूं है कि जी आपने कहा कि मीडिया पे हमारा कंट्रोल है। बिल्कुल नहीं जी, 50 मीडिया चैनल जो हैं वो सारे आप लोगों के कहने पे चलते हैं। आप लोगों हम की ये नहीं मर्जी कह रहे, होती हम है ये तो कह रहे हैं कि आप एक हमारा मीडिया जलसा चैनल दिखाया जाता है, नहीं होता तो आप लोग नहीं दिखाते। एक एआर भाई हमारा अगर वो जलसा दिखा देता है तो उस पर आप लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी मैं समीना मतलूब साहबा से भी कहूंगी और मैं अपनी प्यारी बहन शाहिदा रहमानी से भी कहूंगी, आप जो कहती हैं ना कि आप लोगों ने पूरे जी वक्त पे इंतखाबात होंगे, आप दोनों एक पेज पे आ ही नहीं सकते मेरी बहन। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस चीज को रियलाइज कर लिया है कि किस तरह से मफामत की जो जरदारी जो बादशाह साहब है, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल किया और पूरे पाकिस्तान के सामने गंदा किया। वो इस चीज को रियलाइज करते हैं। अब बेशक आप जरदारी साहब कहें कि जी नहीं नहीं इलेक्शन रिफॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वो बेचारे खेल गए आप लोगों के हाथों में। अब उनको रियलाइज हो चुकी है ये लेकिन वाली आपके बात। साथ किसने खेला? वो तो खेल गए, आपके साथ भी तो खेल हो गया ना। देखिए जी, हमारे साथ तो खेलने वाले वो बाहर बैठे हुए हैं ना, अच्छा, वही इम्पोर्टेड लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज हम इलेक्टेड लोगों को निकाल के ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाके बिठाई। आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ खान साहब के साथ अल्लाह और अवाम के अलावा कोई चीज नहीं है, कोई बंदा इसके साथ नहीं है। पता है ना आप लोगों को भी। और आज देख रहे हैं कि अवाम का प्रेशर। इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होगा। वो कह रहे हैं अब इलेक्शंस होंगे, अब सिलेक्शंस नहीं होगी जिस तरह 18 में हुए हैं। तो 70 साल से तो आप लोग गवर्नमेंट के अंदर थे ना, आप थे, नून लीग थे, तो ऐसे वो करते ना कि सिलेक्शन ना होती, इलेक्शन होते। आज हमने जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ गए हैं तो चीखें आप लोगों की ज्यादा निकल रही हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ। क्यों नहीं आती इलेक्शन रिफॉर्म की तरफ? पता है ना, वो जो आप लोग आप करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म, आप देखिएगा। हाँ, अब इलेक्शन रिफॉर्म आप करेंगे ना, नैब को आप हटा रहे हैं, नैब को आप हटा रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म आप ऐसी लेकर आएंगे। आप लोगों ने अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला दोबारा आप लोग नहीं आ रहे। अच्छा चले ठीक है, देखते हैं, ये तो फैसला कर लेंगे, अवाम फैसला करेंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, आप उज़मा रियाज साहिबा कह रही हैं कि पछता रहे हैं, शायद जरदारी साहब ने आपको ट्रैप कर लिया और अब मलबा सारा आपके कंधे पे है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। वो सीएम पंजाब जो बड़े एक्टिव होते थे, बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे, वो इस वक्त घबराए हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि फैसले क्या करें, कन्फ्यूजन है। आप वाकई में ये बात है या ये आप सिर्फ समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बयानियाँ बिल्ड कर रही है? ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे। ऐसी कोई बात भी नहीं है, हम एक पेज पे हैं और सब जोड़ के जो हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज तैयार हो रही है वो सब कंबाइन हो रही है। हमारी तमाम अलायंसेस जो हमारे साथ है, पीडीएम की जितनी भी पार्टीज हमारे साथ हैं वो सब एक ही पेज पे हैं और हम अपनी तमाम प्लानिंग कंबाइनली चला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये इलेक्शन की ये जो ईवीएम मशीन की का जिक्र किया, मुझे ये बताएं, इन्होंने जो भी अपना लेके आए बिल या कोई भी रिफॉर्म्स लेके आए, इन्होंने अकेलों ने बुलडोज करके हर चीज इम्पोज की। इवन के ईवीएम को इलेक्शन कमीशन ने भी रिजेक्ट किया क्योंकि वो भी मुतमईन नहीं थे और ये ईवीएम को ही ईवीएम ही किए जा रहे हैं। वो कोई किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, इन्होंने वो इम्पोर्ट किया है। और वो इवन के हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो जिम्मेदार है इलेक्शन का, उसने भी एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया। ज्यादा आप इलेक्शन में जो भी रिफॉर्म्स है वो हम खुद लाएंगे और डेट भी हम अपनी तबीयत के मुताबिक, जब हम देखेंगे मुल्क की जो मईशत इतनी बर्बाद हो गई है, ट्रैक पे आने के बाद हम खुद एक फैसला करेंगे कि इलेक्शन कब होने हैं। हम या ना इनके शोर मचाने पे हम कोई रिस्पॉन्स देने लगे
ये जितना मर्जी शोर मचाए, हम इनको कोई भी जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि हमें पता है कि ये शोर मचाते ही रहते हैं। समीना मथुर साहब, तो फिर आपको लगता है इलेक्शंस नवंबर से पहले पहले हो जाएंगे या 2023 में ही होंगे इलेक्शंस? देखिए जी, ये तो सूरत हाल के मुताबिक मैंने पहले ही कहा है कि हम मुल्क को सबसे पहले ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सही, तो ट्रैक पे ये अगले 3 महीने में ट्रैक पे तो नजर नहीं आ रहा है, बड़ा मुश्किल होगा। कैसे आप ट्रैक पे लाएंगे और फौरी तौर पे इस्लाहात भी करेंगे और इलेक्शंस भी करेंगे? कितने महीने हो गए जी? जी जी, मैंने कहा अगले 3 महीने में तो फौरी तौर पे ज़ाहिर है आपको बजट भी पेश करना है, और कैसे ये ट्रैक पे आएगा मुल्क? नहीं, वो देखिए जी, आने वाले जो 1 घंटा या 1 दिन जी जी, उससे भी बंदा फायदा उठाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, अभी वो इस्लामाबाद की कॉल दे रहे हैं, अगर अगले अगले चंद दिनों में, तो ये कैसे मुमकिन होगा? मुल्क में जब जलसे जुलूस हो रहे होंगे। वो तो पहले भी बैठे रहे हैं। देखिए जी, पिछली दफा जब ये हमारी हुकूमत थी तो ये कितने दिनों का धरना लेके बैठे ना, क्या हमारे 126 रुक गए थे, हमारे काम रुक गए थे, हमारे तमाम के तमाम जो हम प्रोमिस करके आए थे वो तमाम अपने काम कंप्लीट किए। हमने मोटरवेज बनाई, हमने इलेक्ट्रिसिटी का मामला बिल्कुल सेटल कर दिया, हमने अपने हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन बनाए, डेंगू के मुकाबले किए, पोलियो का मुकाबला किया। अब हर चीज फिर नए सिरे से इन लोगों ने नए सिरे से बनाने के चक्कर में टाइम भी जाया किया, पैसा भी जाया। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको लगता है फौरी तौर पे इलेक्शंस हो जाएंगे, या जो आपकी पार्टी कह रही है, जरदारी साहब ने भी कहा है कि फिलहाल इस्लाहात जरूरी है, इस्लाहात के बाद ही इलेक्शंस होने चाहिए, और क्या इन इस्लाहात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानेगी? देखिए जी, किसी भी किस्म का इबहम नहीं होना चाहिए। कल जो सदर जरदारी साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिल्कुल इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद ही इलेक्शन होगा, और इस पे PMLN और तमाम जमातें जो हुकूमत में शामिल हैं वो इस पर इत्तेफाक कर चुकी है, और आज ख्वाजा साहब का भी इसमें बयान आ चुका है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान का काम ही सिर्फ मुल्क में इंतशार, नफरत और बगावत फैलाने ही इनका मकसद है, और यही वजह है कि वो इस वक्त इसलिए और ज्यादा परेशान है कि एक तो उनकी वो करप्शन नजर आ रही है, दूसरा वो फॉरेन फंडिंग केस है, तीसरा वो आरिफ नकवी केस है। लिहाजा वो इसलिए इतने घबराए हुए हैं, और इसीलिए उनको अपना टीवी, अपना कैमरा, अपना मोबाइल और अपना सोशल मीडिया और अपना बंदा चाहिए होता है, ताकि वो दिखाएं कि जी अब आवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। आवाम को मालूम है कि उन्होंने जो झूठ का सहारा लेके 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और महंगाई खत्म करने का और IMF में ना जाने का, खुदकशी कर लेने का, कशकोल तोड़ने का जो वादा किया था, उनमें से कोई एक वादे पूरे नहीं किए। और इस तरह ये सबको पता है कि ये एक झूठा खत और झूठी साजिश लेके, साजिश तो ये खुद कह चुके हैं। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब, आप जो बात कर रही हैं IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, ये वादे वो सब ठीक है, लेकिन अवाम वाली जो आप बात कर रहे हैं, अवाम तो उनके साथ थे, लोग जलसों में निकल रहे हैं कि जी महंगाई तो आप तो चोरी कर गए ना, आप तो महंगाई कर गए। अब उसको हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि 2 हफ्ते में उस आपका 3.5 साल में जो आपने लूट मार की है उसको हम खत्म कर सके। बिल्कुल हमारे पास माहिरीन की टीम है, वो टीम नहीं है जो आपके पास लूट मार की माहिरीन की टीम थी। इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालना हमारा मिशन है। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क को तरक्की के राह में ठीक है। उस्मा रियाज साहिबा, आप बता दें, ये कह रहे हैं हमारे पास माहिरीन की असल टीम है। आपके अब देख लें, आप मुझे कितना टाइम दे रहे हैं, देख लें अब आपको। अच्छा, मैं फिर उस्मा रियाज साहिबा, अरे शाहिदा रहमानी साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी बात मैंने बहुत आराम से सुनेंगी, ठीक है? और आप 2 बोल रही हैं, मैं 1 बोल रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब इन्होंने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, इलेक्शन देर से करेंगे, जल्दी करें, लेकिन PDM को चाहिए कि एक बयानिया दे, उधर नून लीग अलग बयानिया दे रही है और इधर पीपल्स पार्टी अलग बयानिया दे दिया, पहली बात। दूसरा, मेरी बहन ने कहा कि मुल्क को ट्रैक पे लाएंगे, और मेरी बहन जिस वक्त आप इस हुकूमत से गई थी तो आप का इसहाक डार कह रहा था कि मईशत के लिए हमने बारूदी सुरंगें बचा के रखी हुई हैं, तो जो हुकूमत आएगी उसके लिए हुकूमत करना इतना आसान नहीं होगा। ये आपका जो वजीर वो जो माशियात था, ये उसके बयानात हैं। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात आपने की कि 15 दिन और 1 महीने के अंदर आपके पास आला-दीन का चिराग नहीं है, तो 3 सालों में क्या हमारे पास आला-दीन का चिराग था? जो 70 साल आपने मुल्क के अंदर गंदगी फैलाई, तो हम उस आला-दीन के चिराग पे 3 सालों के अंदर इस तमाम चीजों को ठीक कर रहे थे। चुप होके सुने, मैं आपकी बारी में नहीं बोली, चुप होके मेरी बात सुने। समीना साहिबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, तो प्लीज इज्जत के दायरे के अंदर आप भी रहे और मैं भी रहूं। दूसरी बात यह है कि जी इनके पास तो तजुर्बा भी था, तजुर्बेकार इनके पास
इनकी कैबिनेट मौजूद है, जिसके अंदर से तकरीबन 60% जो इनकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो करप्ट है और उनके ऊपर एलिगेशन आई हुई है और मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर मतलूब है। जहां तक बात है, नहीं बात सुन लेना, मैं फटाफट बात खत्म कंप्लीट करें ना, वो वाइंड अप हो रहा है, जल्दी कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं ना जलसों के अंदर लोग हमारे साथ हैं, वरना आप लोग भी जलसे जलूस करते, कोई बंदा नहीं है आपके साथ। बाकी ये कि अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो जल्द इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, 15-20 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे और इन्हीं के लीडर अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। उस्मान रियाज साहिबा, आगे आपका जवाब। जी समीना मतलूब साहब, आप जल्दी 10 सेकंड में मुझे वाइंड अप करना है। नहीं, मैं तो उस्मा साहबा की बात का यही जवाब देना चाहूंगी कि ये भूल जाएं कि इनकी मर्जी के मुताबिक कोई फैसले नहीं होंगे, ये सड़कों पे ही रुलते रहेंगे, ये सड़कों पे ही रहेंगे और इनको अब कोई भी हुकूमत में आने नहीं देगा, कोई अवाम इनके साथ नहीं है। आइन तो ये तोड़ते हैं, हमारे मजहबी अकायद पे ये हमलावर होते हैं, तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट पे आप भी हमलावर हुए थे समीना मतलूब साहिबा, तारीख आप माजी बड़ा तल्ख है। हम अपने अकायद पे तो कोई कभी किसी ने सुना था कि मदीना मुनव्वरा में जाके किसी ने इतनी इन्होंने की क़यादत ने तो नहीं किया ना, इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान साहब को पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया उनको सलूट करती है और ये है इनका। ये कहानियां अब हमें ना सुनाए, जो कुछ हो चुका उसकी वीडियो फिल्में आप लोगों ने भी देखी हुई हैं, हमने भी देखी है, तमाम दुनिया ने देखी है, पूरी दुनिया ने लानतें भी डाली है और पाकिस्तान को बुरा भला भी कहा है कि भी ये इस हद तक यहाँ पे नौबत पहुंच गई और आप लोगों ने सजाएं भी नहीं दी इन्हें। तो क्या ये हम अच्छे पहलू ले रहे हैं? हम अपने आप अपनी इस्लाह की बजाय हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी इखलाकी गिरावटें, लेकिन सब जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने